ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇ ಪಾಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಮಹಿಳಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್, ಗೈಡ್ಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ, ಸೇವಾದಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇ ಪಾಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಂಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಬಳಿಕ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನ ಅವರು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 64 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅವರು ತೆರಳ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಡ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇ ಪಾಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ present here and of course celebrate the Republic Day and to say happy Republic Day to one another. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕ ದಳಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಘನತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಲಿಷ್ಠ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. Yes, ladies and gentlemen, by caste, creed and religion we may be many, but as a nation we are all one. India is known for its unity in diversity. Wherever we live in India, we are all one, and that's the sign of unity which we must show to the entire world that India is united. The open jeep, the Honorable Governor exchanging Republic Day greetings with all of us here, and now coming closely towards the first contingent, we have the army contingent. Behind the army contingent is the prisons and correctional services, and then the army public school, Air Force,
ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ NCC. ಅವರ ನಂತರ RR ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯಶವಂತಪುರ. ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. After that, ladies and gentlemen, we have the contingent of CRPF women, behind which we have the fire service and the police public school Koramangala. ಅವರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ BBMP ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಂಗಾನಗರ್. Ladies and gentlemen, just after the Tamil Nadu State Police, where the jeep is now moving, we now have the contingent of the KSRP. Behind KSRP is the traffic warden and scouts and guides. ವಾದ್ಯ ಮೇಳವನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜ್ NCC ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋರಮಂಗಲ, ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬನಶಂಕರಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, Army, English Band, City Armed Reserve and KSRP, and now we move on to the other half. ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್, ಭಾರತ್ ಸೇವಾದಳ್ ಈ ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್. We have KSISF, Civil Defense, NSS, one behind the other. After that, BCP men, Mitra Academy Arakere, Red Cross. ladies and gentlemen, after that, we have the contingent of BCP traffic, and behind the contingent of BCP traffic, we have two special contingents. We have the contingents from Rashtriya Military School, behind which we have the Samarthanam Trust. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ದಳ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವರ ನಂತರ ರಮಣಶ್ರೀ. ಎಲ್ಲ ತುಕಡೆಗಳಿಂದ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಿವಸಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಿಂತಿವೆ. After the inspection of the parade, the Honorable Governor is returning to the main dais. The audience seated on the right-hand side will now get an opportunity to exchange Republic Day greetings with the Honorable Governor and the other dignitaries in the jeep. So, ladies and gentlemen, you have been quiet for a long time. Let's give a round of applause for all the contingents once again. A huge, huge round of applause from all of you. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಂಥದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅಭಿನಂದನೆ, ಗೌರವ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎಲ್ಲರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೆನೆಯೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮರ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋಣ, ಗೌರವಿಸೋಣ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. Ladies and gentlemen, as we were talking about the duties and rights of each and every Indian citizen, this is the day for introspection. Atmavalokana. We need to assess ourselves as Indian citizens and where we stand today, and take an oath that we all will strive together to make India bigger, better and stronger. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗುರುತು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗೌರವ, ಪರಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ. The Honorable Governor, after the inspection of the parade, is now coming back to the main dais.
The parade commander has given the salute and is returning to his position, and thereafter, soon he will order the parade to Vishram in a few seconds from now. ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. We now have the Republic Day message by the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot. मैं 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कर्नाटक के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक दिनों में से एक है। यह वह दिन है जब हजारों वर्षों से विकसित राजतंत्र और 17वीं शताब्दी से अस्तित्व में आए औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी दिन नए भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने औपनिवेशिक और पुरातन भेदभावपूर्ण कानूनों को त्यागते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सभी की समानता की घोषणा की। असंख्य लोगों ने गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए बलिदान दिए और अपने प्राण न्यौछावर किए। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदियों तक संघर्ष कर हमें न्याय और स्वतंत्रता दिलाई। आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों का परिश्रम व्यर्थ न जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता को 3 रूपों में परिभाषित किया: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा, हमें किसी भी परिस्थिति में केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना होगा। सामाजिक लोकतंत्र जीवन का ऐसा तरीका है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत मानता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को ही विरोधता है। समानता के बिना स्वतंत्र कुछ लोगों को अनेक लोगों को पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता एवं समानता स्वाभाविक रूप नहीं लेगी। कर्नाटक सरकार संविधान में निहित इन तीनों सिद्धांतों को प्राथमिकता के रूप में मानती है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक समुदाय की आवाज़ को सुनते हुए न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी भर्तियों में उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न समुदायों की परिस्थितियों को समझने के लिए आयोग गठित किए गए हैं और उनकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन उपायों से कर्नाटक में राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता उत्पन्न हो रही है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य ने आर्थिक गतिशीलता प्रदान करने और सबसे पिछड़े वर्गों को सशक्त करने हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य प्रतिवर्ष सार्वजनिक कल्याण के लिए विशेष रूप से रुपये 1.1 लाख करोड़ व्यय कर रहा है। गारंटी योजनाओं के अंतर्गत
अब तक रुपये 1.13 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं में नया आर्थिक और सामाजिक उत्साह उत्पन्न हुआ है। कर्नाटक उन चुनिंदा राज्यों में है जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बेहतर बना हुआ है। इसके साथ ही सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु देश में प्रथम स्थान पर है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। पारिवारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के 1.37 करोड़ परिवारों को किसी न किसी सरकारी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मध्यवर्ती संस्थानों को समाप्त कर लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर आधारित गारंटी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। इन कार्यक्रमों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर पोषण और आत्मनिर्भर जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही अक्का टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 25 से अधिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इन सब के अलावा कर्नाटक ने महिला कर्मचारियों की सेहत और भलाई को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। महिला कर्मचारियों को सालाना 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। साथ ही कर्नाटक रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 83,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेंगलुरु में लगभग रुपये 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जो आने वाले दिनों में विकास को गति देगी। कर्नाटक सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, संचार उपकरण और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई वैश्विक कंपनियां यहां निवेश कर रही है। विकास को गति देने के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ संपत्ति अभिलेखों की शुद्धता आवश्यक है। इस दिशा में राज्य निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्व न्यायालय में लंबित 80% से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। 51,163 कौड़ी पूर्ण की गई है और अभिलेख अद्यतन किए गए हैं। 4,050 गैर अधिसूचित गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है और 1,11,111 लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र प्रदान किए गए हैं। 1 लाख और स्वामित्व पत्र वितरण के लिए तैयार है। किसानों के हितों की रक्षा हेतु राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए बी खाता को ए खाता में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। ई-स्वत्तु प्रणाली लागू की गई है। प्रशासन को सरल और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए भवन सेटबैक में समयानुकूल संशोधन किए गए हैं। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बनकर उभर रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में चिकित्सा, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, कृषि, बागवानी और प्रबंधन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, सरकारी विद्यालयों में एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। राज्य में लगभग 8.5 लाख बच्चे आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफेसर सुखदेव थोराट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन की जा रही है।
कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में शिक्षा सुधार हेतु अक्षरा आविष्कार योजना लागू की जा रही है। डॉक्टर छाया देगांवकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वर्तमान में वहां 300 क्रांतिकारी मॉडल के कर्नाटक पब्लिक स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। राज्य कौशल आधारित शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसके अंतर्गत नए जीटीटीसी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्किल पार्क और एमएसडीसी स्थापित किए जा रहे हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी कौशल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कर्नाटक अग्रणी है। जनसंख्या के अनुपात में राज्य में सर्वाधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है। सरकार इन मेडिकल कॉलेजों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी लगातार कर रही है। बेंगलुरु, मैसूर, कलबुर्गी, हुबली, धारवाड़, बेलगावी, बेंगलुरु, दावणगेरे, उडुपी, शिवमोगा और तुमकुर स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर स्वास्थ्य निरीक्षण की नई योजनाएं शुरू की है। कुपोषण उन्मूलन हेतु कई पहल की गई है। खाद्य मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसे गंभीर अपराध माना जा रहा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण राज्य विदेशी निवेश आकर्षित करने में अग्रणी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय देने में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कुवेंपु जी के आशय के अनुसार सर्व जनांगदा शांतियां टोटा की भावना से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु भारी हेलमेट के स्थान पर नए पिक कैप प्रदान किए गए हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिली है। नए युग में ड्रग्स नामक मानव विरोधी और विनाशकारी अभिशाप हमारे युवाओं को बलि का बकरा बना रहे हैं, बलि का शिकार बना रहे हैं। इसे रोकने के लिए राज्य ऐसे कानून बना रहा है जिनके तहत इस अभिशाप के लिए जिम्मेदार लोगों को मानव हत्या के समकक्ष अपराध करने वाला मानते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए 33 नए डीसीआरई पुलिस थानों की शुरुआत की गई है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 12 नए पुलिस थाने प्रारंभ किए गए हैं। सभी सीईएन पुलिस थानों को साइबर पुलिस थानों में परिवर्तित कर दिया गया है। इन सभी उपक्रमों का उद्देश्य कर्नाटक राज्य को और भी बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य बनाना है। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की मजबूती, सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल वातावरण के कारण राज्य आईटी-बीटी क्षेत्रों में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभर रहा है। इसे और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कर्नाटक नवोद्यम नीति लागू की गई है। बेंगलुरु से आगे भी प्रौद्योगिकी का विस्तार करने के उद्देश्य से स्थानीय आर्थिक वेगवर्धक कार्यक्रम को रूप दिया गया है तथा इसके लिए 1000 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। वर्ष 2035 तक $20 अरब की क्वांटम अर्थव्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य से कर्नाटक क्वांटम रोड में जारी किया गया है। वर्ष 2025 में अच्छी वर्षा होने के कारण इस वर्ष अच्छी फसलें हुई है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ किसानों की फसलों को नुकसान भी हुआ है। वर्षा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सरकार ने ₹2250 करोड़ का प्रावधान किया है।
इसके अतिरिक्त रुपये 2000 करोड़ से अधिक की बीमा राशि किसानों को प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष किसानों ने आम, मक्का आदि फसलों के दाम कम मिलने तथा गन्ने के लिए प्राप्त हो रहे मूल्य के अपर्याप्त होने के विरोध में आंदोलन किया। सरकार ने तुरंत किसानों के पक्ष में खड़े होकर समस्याओं का समाधान किया। गन्ना उत्पादक किसानों को निर्धारित मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने चीनी मिल मालिकों को निर्देश दिए तथा लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता किसानों को देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तुअर की खरीद जनवरी के स्थान पर दिसंबर में ही शुरू करने की किसानों की मांग पर सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए खरीद केंद्र खोल दिए गए। वर्तमान सरकार किसानों के पंप सेटों को दिन के समय भी 7 घंटे तक निरंतर 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। बदली हुई परिस्थितियों में किसानों द्वारा उगाई गई गन्ने की फसल की यंत्रीकृत कटाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान कर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। अब रागी, धान, मक्का आदि फसलों की कटाई के लिए किसान मशीनों पर ही निर्भर हो गए हैं। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के माध्यम से सरकार इसके लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। 2025-26 को सम्मिलित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग रुपये 10,000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी एवं अन्य विभिन्न रूपों में किसानों को प्रदान की है। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया गया है। पूर्व में लंबित प्रोत्साहन राशि सहित राज्य के 9.07 लाख दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में and also the ADC, Squadron Leader Shri Abhinav. Ladies and gentlemen, this is an opportunity for all of you. Please give a round of applause and exchange Republic Day greetings with the Honorable आंदोलन कर रहे देवनहल्ली के किसानों की भूमि को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। कृष्णा ऊपरी परियोजना के लिए एक ही चरण में भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेते हुए भूमि गंवाने वाले